Good afternoon, class 5th. How are you all? Hope you all will be doing good in your home and you people must completed your copy on time. Although you all know that we are going to check the copies and the copy collection was started. So please complete your copy till the chapter which I have completed. Okay. So in the last video class we have completed up to the sense organ ears. Yes, we have completed up to the sense organ ears. Now in this class we are going to discuss from the sense organ nose, tongue and skin and the taking care of our sense organ. By these two topics this chapter is completed in today's video class. Okay, in the next video class we are definitely going to start the new chapter number 4, our food. So before any waste of time, just start the topic nose, the sense organ nose. Nose is known as the sense organ. Okay, so we all know that the nose help us to smell and breathe. One more thing student, that we have completed this chapter in the live classes. Okay, and we are already started the new chapter, but in the video class I want that you people must revise the chapter in the video class. Okay, सो द नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल द थिंग्स. सांस लेने में और किसी चीज़ के स्मेल करने में, डिटेक्ट करने में हमको हेल्प करता है. एंड इन द नोज़ नेजल कैविटी इनसाइड द नोज़ हैज़ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. द होल्स, दिस होल्स of our nose is said to be as the nasal cavity. Okay, and in this nasal cavity hair like structures were present, and when we inhale the air, so much dust particles and other gases were come inside our nose with आर मिक्स विद द हेयर्स. ठीक है, जो हेयर्स में एयर में मिक्सड है वो सारे डस्ट पार्टिकल्स, अदर गैसेस सब मिक्स होके हमारे नाक में आते हैं. सो ये जो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमारे नोज़ में प्रेजेंट है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट दिस डस्ट पार्टिकल्स टू इनहेल टू गोज टू द लंग्स. लंग्स में जाने से वो एयर पार्टिकल्स उस डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, रोक देता है. दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन आवर नोज, ओके, उसको रोक देता है और एयर को फिल्टर करता है. देन इट विल गोज टू द लंग्स. सो जैसे हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर नोज. दे टेक द स्मेल एज अ इंफॉर्मेशन एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. फिर ब्रेन हमको तुरंत उसका आंसर देता है, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच स्मेल इज़ दिस. ये कोई खाने की स्मेल है या रोज़ की स्मेल है, फ्लावर की स्मेल है, किसकी स्मेल है, हमको तुरंत वो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करके बताता है. That's why the nose is said to be as our sense organ. Okay, so now come to the tongue. As you can see the diagram, tongue has 4 parts in their tiny projection is there, like the narrow part, the lower part is sweet, then salt, sugar and bitter. सारे parts यहाँ पे tongue के हैं और हमको पता चलता है इससे taste, and these parts are said to be as taste buds. Okay, these parts are said to be as taste buds. Tiny projections are there. Our tongue is covered by a tiny projection, small khurdura ek projection. The tiny projections are there. They are said to be as taste buds. These taste buds help to understand which type of food we are eating. Taste को detect करता है कि हम लोग कौन सा food खा रहे हैं. Which type of food we are eating. We are eating sweet, salt, sour, bitter, whatever it is. ठीक है. And this tongue help us to identify the taste of the food. Okay, different kinds of taste. By this taste bud we are able to know which type of taste is this. अब इसमें क्या होता है, in this also the sensory nerves were present. They carry the information, this taste buds carry the information this to the sensory organ. Sensory organ उसको क्या करता है, ब्रेन के पास लेके जाता है और ब्रेन उसको तुरंत डिटेक्ट करता है कि which taste is this. This is bitter, salty, sour, etc. Okay, and thus we can recognize the taste with the help of this taste bud. Okay, now skin, last one sensory organ is the skin. How skin help us to detect the things? Why it is said to be a sensory organ? So how it is said to be a sensory organ? जैसे कोई भी चीज़ मच्छर काटता है या कोई हमको टच करता है, we feel it. Okay, we sense it कि हमको कुछ मॉस्किटो ने बाइट किया, किसी कीड़े ने काटा या कोई हमको टच कर रहा है. और हमारे स्किन में भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है. दे कैरी द इन्फॉर्मेशन, दे विल टेक टू द ब्रेन. ब्रेन उसको तुरंत डिटेक्ट करता है एंड हमको पता चलता है कि हमको मॉस्किटो ने बाइट किया, हमको किसी ने टच किया है. हाँ, ओके, कोई गर्म चीज़ हमने हाथ लगाई है या किसी ठंडे चीज़ को हमने हाथ लगाई है. सो बाय दिस वी कैन डिटेक्ट द थिंग्स. ठीक है, कि हम उसको फील कर सकते हैं.
That's why skin is also said to be as the sensory organ. Okay, skin is also said to be as the sensory organ. और स्किन एक तरह से और हमको हेल्प करता है. वो क्या करता है, हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स हमारे बॉडी से जो वेस्ट वाटर मटेरियल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो भी बाहर निकल जाते हैं. दैट्स वाई द स्किन इज ऑल्सो कम्स अंडर द सेंसरी organ. Okay everyone? Okay, now come to the page 27. Okay, come to the page 27, taking care of our sense organ. So here some points are given how we will take care of our sense organ, what we have to do and what we don't have to do. So first sense organ is the eyes. So we have to wash our eyes regularly while we are watching TV, working on a computer. We have to allow our eyes to relax, okay, in the particular regular interval of time. We have to press gently our eyes when we are watching TV, working on a computer. We have to relax and take care of our eyes in that manner. Okay, when we are reading, we are writing, we have to ensure that maximum distance between our book and our eye. It is very important. We have to make maximum distance between our eyes and our book. We have to straight back. ठीक है, तो आईज में प्रॉब्लम नहीं होगा. And we have to make sure that also that enough light is there while we are writing, while we are reading. Okay, when we are doing something, we are watching TV, enough light will be there. हम लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लाइट होनी चाहिए. If light will be not there, हमारे आइज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा. Okay, so what we don't have to do, we don't rub our eyes in with our dirty hands. एकदम कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने बैठ के एकदम बिल्कुल पास से टीवी और कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए. हम लोग जब कहीं घूमने जाते रहते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, डोंट रीड द बुक. उसमें आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. ठीक है, और अपने आँख के बिल्कुल पास रख के और बहुत दूर रख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. एक मैक्सिमम हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू ईयर्स. व्हाट वी हैव टू डू, हमको अपने ईयर्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए. We have to use only the earbuds to clean our ears and visit a doctor regularly. If we have earache यानी कि कान में दर्द होता है, so don't do your own doctorship, don't eat your own medicine. Just go to doctor, consult to doctor, and the medicine which they prescribed, that eat only that type of medicines. और एकदम बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम हमको म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए. ओके, we have to keep the volume low. अब what we don't have to do, हमको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमारे कानों में नहीं डालना चाहिए कान साफ़ करने के लिए. ओनली वी हैव टू यूज़ द ईयरबड्स. एंड जो ईयरबड हम लोग यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, हेडफोन्स यूज़ करते हैं, उसको 24 घंटे हेडफोन लगा के काम नहीं करने चाहिए. वी हैव टू give rest to our ears also, eyes also, our sense organ also, our body organ also. And we have to give rest to our brain also. दिन भर काम करके, दिन भर बिज़ी रह के ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. हमको अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को टाइम देना चाहिए फॉर रिलैक्स. ओके, एंड द नोज़, कीप योर नॉस्ट्रल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज़ रेगुलरली. हमेशा पानी से उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ब्लो करना चाहिए नोज़ को. एंड कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को हमको अपने नोज़ में इंसर्ट नहीं करना चाहिए. ओके, दिस विल मेक्स अवर नोज़ अनहेल्दी. हमारे नोज़ को वो अनहेल्दी बनाता है. कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लिया, उसको नाक में डाल दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. कभी कोई लेता है, कोई पेन से कान साफ़ करने लगता है. दिस इज़ अ बैड हैबिट. ठीक है, ऑलवेज यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन योर नोज़ एंड ईयर्स. ऑलवेज गो टू डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप. ओके एवरीवन, दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू केप्ट इन अवर माइंड. समझ में आया सबको? ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, अपने आइज़ के साथ, ईयर्स के साथ, नोज़ के साथ. ठीक है, नाउ पेज 10, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 28. So in page number 28 we are going to discuss the tongue and the skin, how we will take care of our tongue and the skin. So we have to clean our tongue regularly while we are brushing by using tongue cleaner. And अब कभी भी अपना टंग क्लीनर, डोंट शेयर योर टंग क्लीनर टू अदर्स. ओके, अपना टंग क्लीनर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्किन. हमको रेगुलरली नहाना चाहिए. वी हैव टू टेक बाथ रेगुलरली टू कीप आवर स्किन क्लीन. वी हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स टू कीप आवर स्किन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम
disease, and do not use अदर्स टावल्स. कभी भी अपना टावल को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. एंड कभी भी कोई रफ सब्सटेंस हमको अपने स्किन में यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज़ सॉफ्ट एंड माइल्ड सोप. डोंट यूज़ एनी रफ सब्सटेंस टू क्लीन योर स्किन. ठीक है. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वी आर डूइंग इन आवर रेगुलर लाइफ. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. ओके. Now the chapter is completed, beta. So listen carefully, all of you. The chapter is completed. Now here is one activity is given to make the model of our eye. If we are in school, we definitely going to do this activity, but it is not possible online. So I'm just explaining this, although I have explained, but again I am explaining this. If you want to make the activity, you can easily make the activity because all the things are available in our home itself. Okay, so what we need for this activity is the play dough, white or brown, blue and black, acrylic paint box, paint brush, red and blue wooden thread, large round bottle lid, small round bottle lid. So first we have to make a dough with a play dough. एक रोल बना लेना है बॉल. उसके बाद बॉटल का लिड लेके ऊपर के पोर्शन को वी हैव टू प्रेस द इन अ शैलो पोर्शन. उसको थोड़ा सा प्लेन करके शैलो पोर्शन में बॉटल से हमको उसको प्रेस करना है. देन टेक द चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर जो हम लोग लिए थे, या फिर ब्लैक और ब्लू जो हम लोग वो लिए हैं, प्ले डफ लिए हैं, वो भी कर सकते हैं. एंड यू कैन टेक द चार्ट पेपर ऑल्सो. वो ईजी होता है. उसको कट कर देना है दो पार्ट में. एक थोड़ा बड़ा पार्ट में कट करना है राउंड शेप, एंड एक छोटे पार्ट में कट करना है. देन वॉट वी हैव टू डू, जो ब्लू कलर का चार्ट पेपर था उसको बहुत नाइसली कलर करना है इन दैट वे कि जो वो आइज़ का इनर पार्ट हमको दिख सके. आइरिस जो हम बनाते हैं वो हमारा अच्छे से शो हो सके. देन जो ब्लैक चार्ट पेपर है वो तो ब्लैक है ही. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द ब्लू चार्ट पेपर ऑन द डव. ठीक है. जो हम लोग प्रेस करके उसको प्लेन किए थे उसके ऊपर ब्लू चार्ट पेपर को रख दिए अच्छे से कलर करके. देन वो ब्लैक चार्ट पेपर को उसके ऊपर स्टिक कर दिए. तो वो बिल्कुल एक आइज़ का, एज यू कैन सी, एक आई का हमको अच्छे से प्यूपिल, उसका आइरिस दोनों बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगा. एंड द वाइट पोर्शन. एंड वी हैव टेकन द रेड एंड द वुलन, रेड एंड ब्लू वुलन थ्रेड हम लोग लिए थे. ठीक है. अब रेड एंड वुलन थ्रेड को हमको अच्छे से कट करके उसको बैक साइड से फ्रंट साइड में उसको स्टिक करना है नाइसली. कोई रेड अल्टरनेट मैनर पे रेड ब्लू ऐसा करके हमको उसको सेट कर देना है बहुत अच्छे से. नाइसली उसको हम लोग सेट कर दिए. उसके बाद अगर जब हम देखेंगे जब वो रेडी हो जाएगा, तो now we have seen that this is a model of the eye. It looks like a eye. The iris, the pupil, the optic nerves, each and everything looks like eye. A very simple, beautiful model of the eye is ready. इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है. आप प्ले डफ की जगह पे आटे का डफ भी ले सकते हो. मेक अ wheat flour duff. Okay. Take a blue chart paper, color it with a navy blue color. Take a white chart paper, उसको small piece में काट लो. Then in the duff, प्रेस विद द बॉटल, एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो जाएगा. देन स्टिक द ब्लू चार्ट पेपर, जो हम लोग उसको नेवी ब्लू कलर में कलर किए थे. देन इन द मिडिल स्टिक द ब्लैक चार्ट पेपर. द आइरिस एंड द पीपल वेर रेडी. ओके. एंड द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज इज ऑल्सो रेडी. एंड टेक द टू थ्रेड्स, ब्लैक एंड वुलन थ्रेड्स, ब्लैक एंड नॉट ब्लू एंड रेड, नॉट ब्लैक, ब्लू एंड रेड उसको लिए. उसको इन दैट मैनर उसको इतने अच्छे से नाइसली कट किए और बैक साइड से उसको स्टिक करना कि जो उसका फ्रंट साइड है, जो ओपन एरिया है, वो अच्छे से एक नर्व्स के जैसा दिखाई दे. और उसको स्टिक कर देना किसके ऊपर, आटे के डव के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ द ग्लू. ओके. स्टिक कर दोगे, देन योर मॉडल इज़ रेडी. आई मॉडल इज़ रेडी. इट इज़ वेरी ईजी एंड इट विल डजेंट टेक दैट मच ऑफ टाइम कि हमको उसको बना नहीं सकते. हम बहुत ईजिली उसको घर पे बना सकते हैं. इफ़ यू वांट टू मेक दिस यू कैन, क्योंकि इसमें कोई भी आग का यूज़ नहीं हो रहा है, शार्प चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा है. ओनली सीज़र इज़ यूज. तो सीज़र तो आप अपने मम्मी पापा के गाइडलाइंस में भी यूज़ कर सकते हो. नो प्रॉब्लम इज़ देयर. ओके. सो दिस मच इज़ कम्प्लीटेड. वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, each and everything in the WhatsApp. Hope you all have completed the chapter, the true false, the external quotient, each and everything. I have already completed all the things and I have send it to the WhatsApp also. And from the GIS application, take the answer key and write down the answer and the question. In that also extra questions are also given. Okay students, so this is your duty to complete your copy on time, to submit your copies.
up to chapter number 3. Complete up to chapter number 3 and submit your copies. Okay. कोई भी चैप्टर 2 तक कंप्लीट करके सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि इन टेस्ट अप टू चैप्टर 3 चैप्टर्स वेर कमिंग, सो यू हैव टू कंप्लीट द 3 chapters and submit the copies. Okay everyone, have a nice day all of you. See you all in the next class and read the chapter after the completion of class. Thank you so much.